Hello, friends. A warm welcome to Ansarkari. And in this episode of Taking Up General Studies Paper 2 questions in a series, we are going to see how you can use your knowledge and information in a decent way so that you can build understanding of the question and also be unique and different from others. First question says that in respect of Indo-Sri Lanka relations, discuss how domestic factors influence foreign policy. So very true, domestic factors are there. That means such elements which are linked with uh, the internal politics of India, or you can say certain other aspects which are linked with uh, how Indian citizens are seeing certain things, certain aspects, certain developments in Sri Lanka. So Indian Sri Lanka relations are built on the foundations of ancient times, primarily Buddhist ideas of peace and prosperity. So good start, simple, meaningful. There had been relations between India and Sri Lanka. Cultural transmission is there. 13th Amendment still remains unfulfilled promise to minority Tamil population in northern Jaffna. Very true. India's constructive role in civil war to restore peace backfired, which was viewed as intervention by in Sri Lankan issues. For example, became the reason for assassination of former PM Sri Rajiv Gandhi in Tamil Nadu. Simply put up, good. Fisherman issue has been a constant challenge on the both sides. Recent claims by Sri Lanka on Kachati violence. India-Sri Lanka relations are based on neighborhood first policy, COVID-19, voted bailout IMF, infrastructure investments, Colombo terminal, bilateral relations shaped by BIMSTEC and Colombo security in play. China's BRI and debt trap have led to stationing of China's research vehicles and leasing of Hambantota port for 100 years. The distance between India and Sri Lanka grew for some time at that time, and the India Sri Lanka connected with Ram Setu share a perpetual bond. So I think all many ideas you have mentioned over here, but one or two domestic factor because it is asking. So we could have written two lines by speaking about Sri Lankan Tamils who shared actually ancestral heritage. They were only Indians, but they were taken up by the British to work in tea plantations in Sri Lanka, and that is how the domestic factor comes into picture. That nationalism, जी, nationalism, or you can say the Dravidian pride and the Tamil identity. It is a domestic factor, so it always makes a difference. But then our foreign policy is not just based upon the insensitive and ignoring even the domestic factor, or even just pursuing them too much out of the way. So India had always been sensitive, and India had always taken a right step. So you have written, I think, fairly good points in a simple way. But yes, if you are talking about Hambantota, then Trincomalee, India is also at Trincomalee, and then some जाफना बट्टी कोलोवा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में मदद की है हमने हाउसेज स्कूल प्राइमरी हेल्थ सेंटर सिविलियन जो एस्पेक्ट है ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है उसको हमने कभी बंद नहीं होने दिया और क्रेडिट लाइन वी हैव गिवन a credit line to Sri Lanka. Our Prime Minister has always been at the forefront in bringing the aspect that we share a very warm bond with Sri Lanka. So I think well written, simple point, and we will just build upon it a little bit. What is meant by Gujarat Doctrine? Does it have any relevance today? Gujarat Doctrine, also known as Panchsheel policy, followed by foreign people agreed to build cooperation between neighbors like China, Pakistan, Bhutan. Not just China, Pakistan, but everyone, in fact. So it gave a way to the neighborhood first policy of India. Five principles of relevance: non-interference in internal affairs of a country. India still abides by it, as it never allows third party between India and Pakistan Kashmir dispute. A very good point. A resolution through dialogue and diplomacy. For example, India stand on Russia-Ukraine war to resolve. Rather than taking Russia-Ukraine war, say for example, what is happening in Myanmar. So India is not directly intervening in Myanmar. तो आप रशिया यूक्रेन से नेबरहुड से दूर चले गए नेबरहुड में ही रहना है या बांग्लादेश में भी जो हो रहा है we are not intervening into it, we are not jumping and supporting, or हम directly नहीं करते ऐसा. Respect for territorial integrity and sovereignty. For example, India's concern over CPEC passing through Pakistan occupied Kashmir, also rejecting China's new map. Democratically engaging with smaller neighbors like Nepal, Bhutan, Bangladesh instead of overpowering tendencies. हमेशा हमने ऐसे ही किया. We have we have treated them as an extended family. Non-reciprocity with smaller neighbors and concessional behavior. Visa-free travel to Nepal citizens and employment of India. In fact, from Nepal and Bhutan, everything in India is actually duty-free. From those थर्ड पार्टी का नहीं आना चाहिए, बस उसके थ्रू जो डंपिंग जो होती है उसके खिलाफ है हम. बांग्लादेश भी यही मिसयूज कर रहा था नॉर्थ ईस्ट को.
इट वाज डंपिंग, एंड एट द सेम टाइम वी वर नॉट गेटिंग प्लेटफॉर्म इन बांग्लादेश। तो हमारा जो डोमेस्टिक सब्सिडी दे रहे हैं हम, जो प्लानिंग है हमारा, जो एग्रीकल्चर है, इवन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, दे वर एक्चुअली बीइंग साइडलाइन। फिर अब क्या फायदा होगा फिर उससे? हाँ जी। तो अच्छा है, ठीक है। और एक दो एलिमेंट जो मैंने बताया बस उतना आप कर सकते हैं, बाकी आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड बैंक एंड IMF, collectively known as Bretton Woods institution, uh, are the two intergovernmental pillars supporting the structure of the world economic and financial world. Superficially, the World Bank and IMF exhibit common characteristics, yet their role, function and mandate are distinctly different. तो दोनों पार्टीज का क्या रोल है ये पूछा जा रहा है। Two visionary eyes of the global order that played crucial role in reaching 110 trillion of global economic size by hand holding the third world countries, and India believes in, that IMF and World Bank must reflect the true realities of the present times of multipolar order. Ultimate aim is to develop and stability. World Bank finances development projects. IMF aid during the balance of payment crisis. Superficially look equitable participation, but driven by Western countries depending on US डॉलर एंड फंडिंग। डिस्टिंग ठीक है, आपने चलो डिस्टिंक्शन बाद में बताया, देखते हैं अभी डिस्टिंक्शन में। वर्ल्ड बैंक रूल बेस्ड ऑर्डर, अपलिफ्टिंग ग्लोबल साउथ, फाइनेंशियल प्रूडेंस, ट्रांसपेरेंसी, prevents crippling of world economy. I think very true, very right words. Group of 5 bodies like IDA, MIGA, IBRD, specialized functioning, maintain exchange rate stability, बिल्कुल सही बात है। SDR, but recent challenges like climate finance is not being dealt with usually. How it will react to de-dollarization and vaporization of dollar. Therefore, along with UN reforms, even Bretton Woods institutions need overhaul and to maintain relevance. I think बहुत अच्छा लिखा है, क्रिस्प है, क्लियर है, और एक दो फैक्ट की बात है, वो कोई वो नहीं है। बाकी एग्जामिनेशन लाइक कंडीशन में आई थिंक वेरी सुटेबल। स्टार्टिंग विद फ्रॉम इन्वेंटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring India develops into a thriving democracy. In the light of the above statement, evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy. तो यानी पूरा आपको बता दिया। 5 अगर आप केस भी उठा लोगे, 5 ऐसी बातें भी लिख दोगे, चाहे फिर वो पुट्टू स्वामी केस हो, चाहे फिर वो आपका इन्वायरमेंट की बात हो, चाहे फिर वो आप एक तीसरा लेंगे अगर आप मान लो स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या बोला, और चाहे फिर वो लैंडमार्क जजमेंट आपकी, चाहे फिर वो गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे CBI को केस्ड पैरेट भी कह दिया, और उसके बाद उसको आगे भी पुश किया, और साथ में ED को भी बोला कि आप आउट ऑफ द वे मत जाओ। तो ऐसे 5 बातें अगर हमने बता दी, 4 बातें भी अगर हमने बता दी, और हमने बताया कि रोल इवेलुएट करने की बात कर रहा है वो जुडिशरी का, इन प्लेइंग द रोल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इन द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यानी क्वेश्चन की अगर हमने, क्वेश्चन में बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं, हर क्वेश्चन में की पॉइंट होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा की पॉइंट होता है, उसको पकड़ के अगर आंसर स्टार्ट किया जाता है तो बाकी की पॉइंट फिर अपनी जगह फॉलो इन प्लेस हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो है आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी को फुलफिल करने के लिए क्या है? जुडिशरी। और जुडिशरी का डायरेक्शन क्या है? जुडिशरी का डायरेक्शन है एक्टिविज्म की तरफ, और उस एक्टिविज्म के ही एग्जाम्पल हैं आपके बेसिक स्ट्रक्चर और बाकी एग्जाम्पल्स। तो जुडिशियल एक्टिविज्म इज ensuring the constitutionality of the law and amendments protecting the fundamental rights of all and acting as a lighthouse of Indian democracy through Constitution of India. अब लेकिन वही वाली बात है, बात करनी थी फ्रॉम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, स्टार्टिंग फ्रॉम इन्वेंटिंग बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, उससे पीछे नहीं जाना है। आप चले गए कोई बात नहीं, लेकिन जाना नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है, वहीं उसने वो बेंचमार्क स्टार्ट कर दिया 1971 वाला। तो आपने प्रियम्बल की बात कर दी जैसे अब, कि भाई प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच लैंडमार्क स्टेप बाय द गवर्नमेंट। अब लेकिन पॉइंट ये है, प्रियम्बल का ना तो पॉलिसी मेकिंग में कोई रोल है डायरेक्टली, प्रियम्बल का ना कहीं पर जो एक्चुअल फ्रेमवर्क है, एक्टिव फ्रेमवर्क, एक्चुअल वर्किंग फ्रेमवर्क, एक्चुअल फील्ड फ्रेमवर्क, फाउंडेशनल फ्रेमवर्क जो पार्लियामेंट में हम लॉ मेकिंग के लिए और डिबेट के लिए करते हैं, वहां भी रोल नहीं है। तो बात ये हो रही है कि जुडिशियल एक्टिविज्म ने कैसे डेमोक्रेसी के आइडियल्स को वो करने में मदद की है। तो आपने दूसरा फर्स्ट अमेंडमेंट ले लिया, बहुत अच्छा है, लेकिन वो 1970 से पहले है, जैसे मैंने कहा। चलिए आगे। तो रोल ऑफ गवर्नर, अब ये बिल्कुल है, ये एक रोल ऑफ गवर्नर की जगह है अब। हाँ, रोल ऑफ गवर्नर ही बोल सकते हैं वैसे तो, क्योंकि अपने आप में वो भी इंस्टीट्यूशन है वो। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर, सीधी बात है, वो वाली बात आ जाती है। व्हाट इज द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर, उसके क्या वो है। तो रीजंस फॉर विदहोल्डिंग द एसेंट टू बिल्स, इससे पहले भी बहुत कोशिश की है ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट ने, फ्लोर टेस्ट तक करवा रहा है वो, कैमरे लगवा रहा है फ्लोर टेस्ट के लिए, वेट कर रहा है बैठ के कि चलो भाई तुम
वोट डाल लो, देखें किसकी सरकार बनेगी। ये सारे काम जुडिशरी के नहीं थे, क्योंकि जनता का दिल धड़कता है और जनता को सही रास्ता दिखाने के लिए एक सही सरकार बहुत जरूरी है, और सही सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। तो वो जुडिशियल है, जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि इतने बजे फ्लोर टेस्ट करेंगे और आप ऐसे कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, तो ये अपने आप में कहीं लिखा नहीं है ये, और ऐसा कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी नहीं किया था। तो एक वो वाला आ गया। अब आपने इंदिरा साहनी वाला केस लिया, तो इसकी जगह वही मैंने कहा कि आपको फंडामेंटल राइट्स की लेना चाहिए, उसको आगे कैसे इवॉल्व करके ले गए, आज तक कैसे लेके आया, तो सर डिजिटाइजेशन। ये कैसे कंटिन्यू होगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट है पूरी हमारी इंडियन हाँ मतलब, डेमोक्रेसी। लेकिन फिर आप 792, ये तो आ गया, चलो इवोल्यूशन वाला तो मैं बोल ही रहा हूँ, ये पॉइंट अच्छा आ गया, ये मतलब ठीक है, ये तो 1992 में है, और उसके बाद ये तो चल ही रहा है, ईडब्ल्यूएस पे लाके रोको ना इसको, इंदिरा सहानी वाले में ही ईडब्ल्यूएस भी हम्म। ले आओ, तो सर राइट टू ठीक प्राइवेसी भी है, आप ले आए, ठीक है। फोटो सो है क्या। क्या क्या ही ले गए सर, फिर वो हाँ वर्ड मतलब लिमिट। थोड़ा छोटा कर दो ना भाई, आप इवोल्यूशन ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी एंड इंदिरा स्वामी केस, ठीक है, इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एफिशिएंसी बट एबॉलिश रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब आप चले गए उसकी थर्ड लेयर में। हम्म। अगर थर्ड लेयर में जाने की जगह आप बोलते कि इन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस, ऐसे बड़ा वर्ड लिखते, तो फिर ये अंदर वाला लिखने की जरूरत ही नहीं थी, वो अपने आप अप्लाइड हो गया वो बात। जी। आप क्या बताते हो कहाँ पर, कितना आपको लिखना है, ये आपके कॉन्फिडेंस पे और आपकी एबिलिटी पे कि मैं क्या वर्ड बताने जा रहा हूँ उस पर डिपेंड करता है। तो बात तो बिल्कुल सही है, क्या क्या लिखने हैं, हमें तो रोकना है हाथ को, हमें तो अपने आप को रोकना है कि जो मुझे पता है सब कुछ वो नहीं लिखना, उसको छोटे फ्रेज में लिखो, उसको डिक्टम्स में हम्म। लिख दो। तो जैसे अब आपने बता दिया राइट टू प्राइवेसी, तो लेकिन राइट टू प्राइवेसी में द लिविंग डॉक्यूमेंट शुड फुलफिल डेमोक्रेटिक आइडियल, तो ये बोलने की जगह आप बोलते कि कैसे 1978 79 से अगर हम बोले एक बात है, कैसे फंडामेंटल राइट्स और डिग्निटी को इवोल्यूशन करते करते आप उसको पुट्टू स्वामी केस तक ले आए, ये है बात। कैसे आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ है, कैसे वो एक्सपैंड होता चला गया, एक वो ले लिया, एक ये ले लिया, और आप खुद सोचो आंख बंद करके कि जुडिशरी ने ऐसा क्या किया है लगातार अपनी नजरों में, तो इन्वायरमेंट का एक आ जाएगा जी। कि भाई, इन्वायरमेंट का एक आ जाएगा, एक एग्जांपल तो देना पड़ेगा आपको, कि चाहे वो गंगा साफ करवा रही है, माँ गंगा बनवा रहे हैं उसको, राष्ट्र भगवान का नाम बनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बना दी पॉल्यूशन की, हम्म। उसका काम नहीं है। नहीं है, बस इतना करना है। तो जी। क्लैरिटी, और आप कौन सा फ्रूट पकड़ रहे हो। चलिए, हम्म। विश्व बैंक और आईएमएफ की बात की, स्थापना हुई, कार्य भूमिका साल देख लेना, मुझे साल याद नहीं है। विकासशील देशों का विकास, वैश्विक मूल्य प्रणाली, सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो अच्छा स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन इंग्लिश में जैसा है वो हमें उतना एलोबरेट करना पड़ेगा, उतना नहीं है ये। दोनों का वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, ये आपने बात बता दी, और वैश्विक स्थिरता, ठीक बात है। आधुनिक संरचना का सिद्धांत आपने जो बताया, तो भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का प्रतिकरण, यानी वही बात है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और जुडिशरी के इंडिपेंडेंस, भारतीय संसद के लोकतांत्रिक अवधारणा के संघात्मक की संरचना को बराबर महत्व देता है। न्यायिक सक्रियतावाद, सरकार और कार्यपालिका और विधायिका के आगे संवैधानिक शक्तियों का उचित प्रयोग जनता के हित में करने को प्रोत्साहित करती है, ठीक बात है। जवाबदेही सुनिश्चित करना, कार्य को निष्क्रिय करना, सामाजिक राजनीतिक न्याय को बढ़ाना, तो ये बात तो सही है, लेकिन वो बोल रहा है कि कैसे किया है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये बात सही है। पर्यावरण, राजस्थान, ग्रेट इंडियन मानवाधिकार मैनुअल स्कैवेंजिंग की कड़ी निंदा की, सही बात है, ये भी अच्छा एग्जांपल है मैनुअल स्कैवेंजिंग का। 2G घोटाला, संवैधानिक कानून है, नागरिकों के हितों की संविधान के द्वारा रक्षा करना। चलिए आगे चलिए। ओके, so we are done for the day in that, so please Mansi, you can repeat your points. सर ये कि थोड़ा सा क्रिस्प लैंग्वेज और चॉइस ऑफ वर्ड से थोड़ा और शॉर्ट हो जाएंगे सेंटेंसेस। थोड़ा वही एक चेंज करना है उसमें मेरे को। वो लग रहा है कि सब मेरे सेंटेंसेस थोड़े ज्यादा लंबे हो जाते हैं। नहीं, जब आपका देखिए वही बात है कि वही वैसे ही है कि अगर मान लो कोई आदमी बोलता है कि भाई वैलेंटाइंस डे मनाना है, तो वैलेंटाइंस हम्म। डे मनाने के लिए आपके 2 लाख तरीके हैं लोगों के पास, तो जी। चैन ही नहीं है कि भाई जो काम की चीज करनी थी वो तो की नहीं, लेकिन हम्म। आपके लिए सब कुछ बुक कर दिया, और
मतलब उसको फिर उस डायरेक्शन में ले गए कि 5 बुके भी हैं लेकिन वो 5 मिनट बाद वो डस्टबिन में जा रहे हैं, फिर खाना भी बहुत सारा हम्म, है, फिर drinks भी हैं, फिर डांस भी है, एक ही बार सब कुछ हो रहा है। या फिर एक हाँ। कुछ, वही बात है कि अप्रोच, हम्म। आपको क्या आता है। एग्जामिनर ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आपको आता क्या है, ये बात सच है, लेकिन वो उससे ज्यादा इंटरेस्टेड ये है कि आप हैंडल कैसे करते हो। हाँ जी। ये वो नहीं हो रहा है, ये वैसे नहीं है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आता है और तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए या नौकरी किसी भी कॉज पे चाहिए डेस्परेट होके आप सब बताते जा रहे हो। हाँ जी। ऐसा मेरे साथ रियल लाइफ में भी मैंने ऐसे एग्जाम, ऐसा मैंने महसूस किया है कि जब आप सामने वाले को बताते मैं ये करा दूंगा, मैं ये भी करा दूंगा, हाँ जी ये भी करा देंगे, आपका ये भी हो जाएगा, तो सामने वाला कभी नहीं। लेकिन जब आप ये बोलते हो अच्छा बता तुझे चाहिए क्या और तेरे बस की है, हम्म। फिर गेम पलट गया। जी। तो आपको भी वैसे ही सोच के वहां लिखना है कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर के बाद किया क्या था ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने, जिससे हम्म। भाई बोला जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया। हाँ बस तुम्हारे जी। दिमाग में अपने आप आ जाएंगे 4-5 चीजें, बोलेगी तुम हम्म। जी। उसको नहीं। जब आप देखो, जब आप ये लेके आ जाओगे, एग्जामिनर को ये अच्छे से पता है कि कुछ चीजें ला सकते हो, तो उससे हम्म। नीचे वाली चीज तो अपने आप ऑटोमेटिकली आएगी, हाँ जी। प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हम्म। अब जैसे अब वो 1971 कह रहा है लेकिन फिर भी आप ले आए फर्स्ट अमेंडमेंट और वो 9 शेड्यूल, तो जी। बस भटक गया ना मामला हाँ। है। हाँ जी सर। बस इतना सही सोचना है। और दिव्या पीछे पीछे आ रही है लिख के, दिव्या ने पूरा नहीं लिखा और वो नहीं किया, तो मैं जानना चाहूंगा क्यों, बताइए। सर श्रीलंका वाला कल लिख लिया था और गुजराल डॉक्ट्रिन आता नहीं था सर, इसलिए नहीं लिखा सर। बाकी के तो ऑप्शंस हाँ, लिए। तो जो लिखा गया है वो अपने आप में बहुत अच्छा और बहुत ही क्रिस्प है। उतना भी अगर किसी को आ जाए तो वो कल को ये ब्लेम नहीं कर सकता कि भाई मुझे पता नहीं था। तो with these ideas and thoughts, we try to do our best, and we strive for sincerity and honesty in the work process through different programs and ideas. Thank you for being with Ansarkari. Let's get success together.